السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ آر ٹی سی ملازمین کی مابقی تنخواہیں فوری جاری کی جائیں، وزیر اعلیٰ KCR نے اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد محکمہ فائنانس کے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے عمر کالونی بابا نگر میں نجم النساء ایجوکیشنل کیمپس کا رکھا سنگ بنیاد، بارش متاثرین میں امداد کی تقسیم۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے تقریب سے کیا خطاب۔ GHMC انتخابات میں BJP زبردست کامیابی حاصل کرے گی، حکمت عملی اجلاس کے بعد BJP قائدین نے کیا دعویٰ۔ دیپاولی تہوار کے دوران شہر کے کئی مقامات پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آتش زدگی کے حادثات، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ مجلس کی ریاست بہار کے اسمبلی انتخابات میں شاندار کامیابی پر جشن جاری، جہنما ڈویژن میں جشن اور جواہر نگر میں دعائیہ اجتماع کا اہتمام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے محکمہ فائنانس کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران روکی گئی RTC ملازمین کی تنخواہیں فوری جاری کریں۔ وزیر اعلیٰ نے تقریباً 120 کروڑ روپے فوری جاری کرنے کی ہدایت دی ہے اور کہا کہ GHMC حدود میں تقریباً 50% بسوں کی آمد و رفت کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ KCR نے پرگتی بھون میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے مذکورہ فیصلہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ریاستی حکومت TSRTC ملازمین کے مفادات کے تحفظ کی پابند ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مرکزی حکومت کئی حکومتی اداروں کو خانگیاں رہی ہے، تاہم TRS حکومت ان اداروں کو مزید ترقی دے رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیل سائی سوندر راجن نے اس سال دیوالی تقاریب کو ملک کے ان سپاہیوں کے نام کیا جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ گورنر نے بتایا کہ جاریہ سال وزیر اعظم ہند کی جانب سے اپیل کیے جانے پر انہوں نے یہ اقدام کیا ہے۔ گورنر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے لیے اشیاء ضروریہ کی خریدی مقامی تاجرین سے کریں تاکہ وہ معاشی طور پر مستحکم ہو سکے۔ Dance with the deep of diyas. I submit to thee, our warriors, our soldiers who are fighting for this country at the border. So the diyas are lighted for safeguard their life, as our Honorable Prime Minister mentioned here. So these diyas, these deepams are submitted for the sacrifice. کل ہند کانگریس کمیٹی ترجمان ڈی شرون نے ریاستی وزیر KTR پر الزام عائد کیا کہ وہ ایک مرتبہ پھر GHMC کی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی شرون نے بتایا کہ ٹیکس میں 50% کٹوتی اور دیگر مراعات کا اعلان صرف GHMC انتخابات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے اور عوام کو ایک مرتبہ پھر دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیئرمین آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل سید نصیر الدین چشتی نے ایک وفد کے ہمراہ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ملاقات کی۔ سید نصیر الدین چشتی جو درگاہ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین بھی ہیں، انہوں نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے کیے جا رہے اقدامات کی ستائش کی۔ اس وفد میں مولانا سید عبد القادر قادری، شجاع الدین افتخاری، محمد حسین خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔
बीजेपी रुकन खानसास कौंसल सी रामचंद्र राव ने दावा किया है कि बीजेपी जीएचएमसी इंतखाबात में शानदार फतेह हासिल करेगी। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत के दौरान उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि धरगानी पोर्टल का कंट्रैक्ट खानगी कंपनी को दिया गया, जबकि हुकूमत के कई इंजीनियर्स इस तरह का काम कर सकते हैं। उन्होंने बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद के लिए तकसीम की गई रकमी इमदाद में भी धांधलियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी बदउनवानियों में मुलविस रही है और जीएचएमसी इंतखाबात में अवाम पार्टी को सबक सिखाएगी। సరే దాని మీద నేను వచ్చే ముందు నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని కొన్ని విషయాలు అడగదలుచుకున్నాను. మొన్న 10,000 రూపాయలు మీరు ఈ యొక్క మునుగు ఫ్లడ్స్ బాధ్యతలో ఆ బాధ్యతలకు 10,000 ఇస్తా అని చెప్పారు. 550 కోట్లు దానికి మీరు కేటాయించారు. ఇప్పటి వరకు మీరు 475 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టని చెప్పారు. ప్రజాప్రతినిధులుగా ఈరోజు కూడా మా ఇంటి దగ్గరికి కానీ మా కార్యాలయం కానీ మాకు రాలేదు 10,000, మాకు 3,000 వచ్చినాయి, 5,000 వచ్చినాయి, సంతకం మాత్రం 10,000 తీసుకొని చెప్పడం జరిగింది. అంటే 475 కోట్లలో ఎంత మేరకు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళింది, ఎంత మేరకు మీ యొక్క నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళింది అని చెప్పేసి దాని మీద వివరాలు ఇవ్వాల్సిందిగా నేను కేటీఆర్ గారిని కోరుతాను. ఈ 475 మొత్తం స్కామ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మిగిలినటువంటి ఒక 50 కోట్లకు 75 కోట్లకు ఇప్పుడు మీరు మీ సేవలు అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళకు మీరు ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. సౌచ్ వే ఖాకర్ బిల్లి హజ్కు నిక్లి అంటారు దీన్ని. 100 ఎలకలు తిన్న తర్వాత పిల్లి హజ్కు పోయిందంట. 475 కోట్ల రూపాయలు మీరు ఎక్కడ స్వాహా చేశారో ఎవరు స్వాహా చేస్తారో అర్థం కాలేని పరిస్థితిలో अजीम तर बल्दिया हैदराबाद से व्यवस्था सैनिटेशन वर्कर्स ने इतवार को वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर KTR के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़, मेयर B राम मोहन और TRS रुकन असम्बली M गोपाल के अलावा GHMC की मुख्तलिफ यूनियनों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इंदिरा पार्क पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में GHMC वर्कर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर KTR ने एक दिन कबल ही GHMC वर्कर्स की तनख्वाहों में 3,000 रुपये इजाफे का ऐलान किया था, जिसकी वजह से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया है। रोशनियों के त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन भी अकीदतमंदों की जानिब से दोनों शहरों के मनादिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की गई और रिवायती जोश व खरोश के साथ त्यौहार मनाया गया। चार मीनार पर वाक़े महालक्ष्मी मंदिर में पूजा के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंचे, जबकि ACP चार मीनार डिवीजन अंजैया और ACP ट्रैफिक रविशंकर ने इंतजामात की निगरानी की। चार मीनार पहुंचने वालों में रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर सियासी कायदीन भी शामिल हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रियासत बिहार के इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत चूने की भट्टी रोड पर मुहिब्बान मजलिस की जानिब से जश्न मनाया गया और आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा को तहनीत भी पेश की गई, जबकि इस मौके पर मल्हान खान के अलावा इब्तिदाई सदर सैयद नासिर अली व दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अलावाजी मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने BNK कॉलोनी और अलीबाग का तफसीली दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फियत भी हासिल की।
जवाहर नगर इब्तिदाई मजलिस के ज़िम्मेदारों ने मस्जिद सहाबा में खुसूसी कुरान ख़वानी और दुआया महफिल का एहतमाम करते हुए मजलिस की रियासत बिहार में शानदार कामयाबी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एक दूसरे को शीरनी खिलाते हुए मुबारकबाद भी दी गई, जबकि सरगर्म मजलिसी कारकुनान और इब्तिदाई के ज़िम्मेदारान फराज खान, पाशा मियाँ, मोहम्मद अख्तर, अब्दुल खुद्दूस और मोहम्मद शहबाज ने बताया कि रियासत बिहार में दलित मुस्लिम इत्तेहाद को शानदार कामयाबी मिली है, जिसके लिए उन्होंने बारगाह इज़्ज़ती में सजदे शुक्र बजा लाया है और बिहार की आवाम से भी वो इजहार तशक्कुर करते हैं। AIMIM सिकंदराबाद इंचार्ज बंटी नारमन का भी इब्तिदाई अराकीन ने शुक्रिया अदा किया। और उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, उनके पार्टी को और कामयाबी अता फरमा, और जिस तरह से आवाम की खिदमत कर रहे हैं परवरदिगार इसी तरह इन्हें खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। साहब जो मजलूम की आवाज़ जो झुम के जो काम कर रहे हैं, मजलूम की आवाज़ दलित मुस्लिम ईसाई सब मिलकर काम कर रहे हैं साहब, और इसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमारे साहब को और आगे बढ़ाए। और जो बिहार की जो हिमाचल की जो आवाम है, आवाम से हम अदबन गुजारिश कर रहे हैं तहे दिल से कि हम माँ बहन नौजवान बुजुर्ग तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे क़ायद को आज वहाँ पे ऐसा एक मुकाम बना चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तहे दिल से आप लोगों का पूरे सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 14वीं इमारत की तामीर और ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की 11वीं शाख का संग बुनियाद सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया, जिसका नाम नजम उन्नीसा एजुकेशनल कैंपस रखा गया है। उमर कॉलोनी हाफिज बाबा नगर में मुनक्किदा इस तकरीब में कायद मजलिस और रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी, ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट नूरुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर ट्रस्ट की जानिब से सैलाब और बारिश से मुतासरा खानदानों में माली इमदाद और राशन किट्स की तकसीम भी अमल में लाई गई, जबकि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस तकरीब से खिताब भी किया। मैं अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ वो चीज नहीं होने देना चाहता। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अकबर साहब क्या है? मैंने कहा मैं दुनियावी तालीम के लिए मेरे बच्चों को अच्छी तालीम दे रहा हूं, लेकिन घर पर मौलवी साहब आते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, मजहबी मालूमात देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जब इम्तिहान रहता है बोलते हैं कि इम्तिहानात है, 10 दिन के बाद मौलवी साहब आइए। और तालीम दीन की मुनक़ते हो जाती है थोड़े दिन के लिए, फिर बाद में कुरान तो कैसे भी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इस्लाम क्या है वो नहीं मालूम, इस्लाम की तालीम क्या है वो नहीं मालूम, तारीख इस्लाम क्या है वो नहीं मालूम, अहादीस क्या है वो मुकम्मिल नहीं मालूम। तो अनवर साहब ने कहा तो आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ऐसा निसाब, ऐसा सिलेबस बनाएं कि ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ने वाले बच्चे को दुनिया की तालीम के साथ दीनी तालीम भी मिल जाए। ऐसा निसाब बनाया। हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को हमने मुकर्रर किया। बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जहन जो बनता है, उसके एक्सपर्ट्स को हमने मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि इतना बोझ ये उम्र के बच्चे पे डाला जा सकता है, इतना बोझ। तो हमने निसाब बनाया, ऐसा निसाब बनाया, सारी दुआएं याद हो जाती हैं, कुरान खत्म हो जाती है, तर्जुमा कुरान का भी खत्म हो जाता है, बुखारी शरीफ की अहादीसें खत्म हो जाती हैं, तारीख इस्लाम पूरी पढ़ा दी जाती है, सीरतुन नबी मुकम्मिल हो जाती है, और उसके साथ साथ साइंस, जदीद टेक्नोलॉजी और इस्लाम की तालीम भी हो जाती है। जब एक बच्चा हमारे पास नर्सरी में दाखिला लेता है, 10वीं पास करता है, तो कुरान भी खत्म हो गई, कुरान का तर्जुमा भी खत्म हो गया, सीरतुन नबी भी खत्म हो गई, तारीख इस्लाम भी खत्म हो गई, बुखारी शरीफ की हदीसें भी खत्म हो गई, दुआएं भी याद हो गई, सब कुछ हो जाता है। और फिर जब ये निसाब बनाया तो मसलक के झगड़ों को भी हमने देखा। अनवर साहब खुद अहले हदीस के मरकज में जाके दस्तखत करवा के लाए। अनवर साहब
अहले सुन्नत के मरकज पे भी जाकर दस्तखत कराए, तबलीगियों के पास भी, बरेलवी भी गए, देवबंद भी गए, वहां से भी दस्तखत करवा के लाए कि इसमें अकायद का कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इसी पर ज्यादा तवज्जो। ऐसी किताब के देखने वालों ने कहा, अरे ये काम तो 100 बरस पहले होना था, ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन वो काम भी अल्लाह ने ओवैसी ग्रुप ऑफ मस्ट ये स्कूल व सालाना मिलत एजुकेशन ट्रस्ट से लिया और अनवार साहब जैसे आलिम दीन से लिया। मैं ममनून हूं, मशकूर हूं। करीब 25 लाख रुपया सर्फ हुआ, 3 से 4 साल लगे वो सिलेबस को बनाने में। तो आप गौर करो कि आपको सिर्फ बच्चे को लाकर स्कूल में छोड़ना है, लेकिन आज अफसोस के साथ कहता हूं कि दाखिला हम दे देते हैं, दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े दिन में बच्चे कम होना शुरू हो जाते हैं। अरे क्या माँ बाप अपने बच्चों को हमारे स्कूल की गेट तक लाकर नहीं छोड़ सकते? और तमाम सालाना मिलत एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टीज को, जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज हाफिज बाबा नगर में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की 11वीं शाख का संग बुनियाद आज रखा गया है। और मेरा मानना यह है कि वतन अजीज में मुसलमानों को कोई चीज़ अगर नीचे खींचती है और हमको पसमानदा रखती है और जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों से नाइंसाफी की जाती है, हमको हमारे हुकूक से महरूम कर दिया जाता है, इसकी कई वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों के पास उनकी एक सियासी आज़ाद क़यादत नहीं है, और दूसरी अहम वजह यह है कि मुसलमान तालीम से बहुत दूर हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि खुद हुकूमत हिंद के आदाद व शुमार ये बताते हैं कि अगर इलिटरेसी अगर वतन अजीज में सबसे ज़्यादा किसी में है तो मुसलमानों में है। करीब 42.87% मुसलमान वतन अजीज में लिटरेट हैं। और अगर ख़वातीन में अगर आप देखेंगे, तमाम हमारे हिंदू भाइयों में, जैन भाइयों में, ईसाई हैं, सिख हैं, इनमें ख़वातीन में भी सबसे कम जो नंबर आता है वो हमारे ख़वातीन का आता है। इसीलिए बहुत अहम काम है इन तालीमी इदारों का क़याम और मिलाना। यकीनन ये ना सिर्फ हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक रियासत को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, बल्कि पूरे मुल्क को इस तरह के तालीमी इदारों से फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि अगर वतन अजीज़ में 14% के करीब मुसलमानों की आबादी है और अगर उसमें से 42.87% अगर इलिटरेट्स हैं और 100 में से सिर्फ 3 बच्चे हायर एजुकेशन या आला तालीम में ग्रेजुएशन हासिल करते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हम किस तरह से फ़िरक़ा परस्ती का मुकाबला कर सकेंगे, किस तरह से हम हिंदुस्तान के आइन को बचा सकेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन तालीमी इदारों को मजबूत किया जाए। जो चीज़ मुसलमानों को नीचे खींच रही है, जो चीज़ मुसलमानों को हमेशा गरीबी और मुफलिसी का शिकार बना देती है, जो चीज़ मुसलमानों को हमेशा किसी के हाथों में खिलौना बना देती है, तो वो है कि हम इल्म से दूर हैं। इसीलिए याद रखिए कि चाहे आप किसी जगह पर हों, आपको अपनी औलाद को तालीम दिलाना है। अगर किसी चीज़ के लिए जिहाद करने का वक्त अगर है तो जिहाद करो इल्म हासिल करने के लिए। जिस दिन आप इल्म हासिल कर लोगे, आपके बच्चे और ख़ास तौर से अपनी बच्चियों को पढ़ाइए। आप जानते हैं कि माशरा कितना बुरा है, कितना गंदा है, किस तरीके से जहेज की लानत की वजह से
آج گھروں میں مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں تو کہوں گا کہ بیٹوں سے زیادہ بچیوں کو پڑھائیے، آپ بچیوں کو قابل بنائیے اور ان کو اتنا طاقتور بنا دیجئے کہ وہ خود جب علم سے طاقتور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نہ صرف ہمارے گھر کا بلکہ ہمارے بچیوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا. کیونکہ ایک باپ کے لیے ہمیشہ، ایک باپ اگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی رہتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیے، خوب قابل بنائیے اور مجلس کی نمائندگی پر سالار ملت کی اور خواہ فخر ملت علیہ الرحمہ کی اس کوششوں کی بنیاد پر آج تلنگانہ میں 4% ریزرویشن ہے مسلمانوں کے لیے جو BCE کے نام سے ہے. تو اگر ہم 12ویں جماعت تک اچھا پڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کسی گورنمنٹ کے یا کسی کورس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ریزرویشن بھی ان کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کی تعلیم مکمل بھی ہو سکتی ہے، اعلیٰ تعلیم کی، ہائر ایجوکیشن کی. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. اب انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں بول سکتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ جناب اکبر الدین اویسی کی تقریر کے بعد بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. مگر میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے والے ہیں بلدیہ کے. ہمارا تو جاری ہے، بہار سے شروع ہوا تھا، اب چلے گا سلسلہ. چندرائن گٹا میں بھی جلد سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بولنا ہے اور بولیں گے انشاءاللہ. بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں مگر یاد رکھیے کہ کوئی اگر آپ کو مشکل وقت میں نظر آتا ہے، اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پہلا فون آپ کرتے ہیں کہاں ہے رے مجلس والے. یعنی ان کے جملے میں بھی کیا ہے، کہاں ہے رے مجلس والے. میں یہ نہیں بولتا انہوں کہاں ہے، انہوں کہاں ہے، کہاں ہے رے مجلس والے. تو یہ ایک محبت کی نشانی ہے، یہ ایک طلب کی نشانی ہے. تو میں سلام کرتا ہوں. الحمدللہ مجلس آپ کے درمیان میں ہے، تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. جو لوگ مصیبت کے وقت نظر نہیں آئے اب ضرور الیکشن کے وقت نظر آئیں گے. آنے دیجیے، یہ عوام طے کرے گی. بہار میں بھی بہت پکارے، بہت بولے، اتنا بولے کہ بی ٹیم ووٹ کاٹتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں، فلاں کاٹتے ہیں. اللہ ان کو بتا دیا کہ کیا نتیجہ نکلا. اور دیکھیے وہاں پر بھی ہمارا اخلاص تھا، ہم تو تیار تھے کہ آؤ بات کرو، مگر سب کو یہی تکلیف تھی کہ نہیں شیروانی سے نہیں بات کریں گے، سب سے بات کریں گے. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نہیں بات کریں گے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے وہاں پر بھی عزت سے نواز دیا. اب مجھے یقین ہے کہ جو سیاسی سفر کا آغاز فخر ملت اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا اور جس کو وسعت اور طاقت سالار ملت نے دی، انشاءاللہ تعالی ہم اسی سفر پر گامزن ہیں. ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. ان کی زندگی اور مرحوم قائد کے ساتھ جو جتنے مرحوم قائدین ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین یہ کام کر رہی ہے. آپ ان تعلیمی اداروں میں اس کی مدد کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی آپ نے ہمیشہ عطا کی، اتحاد کو اور مضبوط کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. اتوار کی اولین صبح KPHB کالونی میں واقع الیکٹریکل ہارڈ ویئر شاپ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. دوسری منزل پر واقع رام دیو الیکٹریکل ہارڈ ویئر شاپ میں آگ کے شعلے اٹھتے دیکھ کر مقامی عوام نے فائر بریگیڈ کو مطلع کیا، جس کے بعد آتش فروغ عملے نے مقامی حادثے پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا. متعلقہ پولیس نے سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی.
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ریاست بہار کے اسمبلی انتخابات میں شاندار مظاہرے پر ملک و بیرونی ملک جشن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت بزم اتحاد مدینہ کی جانب سے بزم اتحاد گلوبل کے صدر احمد الدین اویسی کی قیامگاہ پر جشن کا اہتمام کیا گیا، جس کی نگرانی احمد الدین اویسی نے کی۔ اس موقع پر بزم اتحاد مدینہ کے ذمہ داران سید شاہ علی قادری ابرار، دستگیر خان، محمد عقیل کمال کے علاوہ بزم اتحاد جدہ کے ذمہ داران یوسف الدین امجد، نائب صدر و ترجمان محمود بل شرف اور محمد فاروق بھی موجود تھے۔ بزم اتحاد مدینہ نے مجلس کی شاندار کامیابی پر تمام مجلسی قائدین بشمول صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کو مبارکباد پیش کی۔ اس تقریب میں محبان مجلس نواز خان اور محمد مقیم بھی موجود تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ایک طویل جد و جہد اور جہد مسلسل کے بعد یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 سال پہلے بھی کشن گنج میں گئے تھے مجلس والے اور 6 سیٹوں پہ الیکشن لڑے تھے، تو اب جو ہے اس مرتبہ جب تو کچھ کامیابی نہیں ملی تھی، اب اس مرتبہ گئے ہیں تو مسلسل جاتے رہے اور لوگوں کے کام کراتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو ہے 5 سال کے بعد اب مجلس اتحاد المسلمین کو 5 نشستیں حاصل ہوئی ہیں اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ ہم اس کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو اور اکبر الدین اویسی صاحب کو اور اختر الایمان صاحب کو اور عادل حسن صاحب اور دیگر لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی مسلسل جدوجہد کے باعث مجلس کو یہ کامیابی نصیب ہوئی۔ شکریہ۔ سید یوسف احمد ریٹائرڈ محکمہ پولیس ولد سید احمد مرحوم ساکن نجم نگر کشن باغ کا بعمر 78 سال انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ بعد نماز عشاء مسجد محمدی کشن باغ چوراہے پر ادا کی گئی، جبکہ تدفین قبرستان متصل مسجد پیارو میاں مصری گنج میں عمل میں آئی۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 فرزندان اور 4 دختران شامل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبرات 9848226492 یا پھر 7330368619 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سرکردہ قائدین نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ایچ ایم سی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی جائے گی۔ بی جے پی دفتر میں ریاستی بی جے پی یونٹ کے صدر بی سنجے، سینئر قائد و مرکزی مملکتی وزیر کشن ریڈی، ڈاکٹر لکشمن ڈی کے ارونا کے علاوہ دیگر نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ مذکورہ اجلاس میں جی ایچ ایم سی انتخابات میں اپنائی جانے والی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذکورہ قائدین نے دعویٰ کیا کہ جس طرح عوام نے دوباک میں ٹی آر ایس کو مسترد کیا ہے، اسی طرح جی ایچ ایم سی انتخابات میں بھی ٹی آر ایس کو سبق سکھائے گی۔ ایراگڈے میں واقع ایک میکینک کے مکان میں آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق الیکٹرک اشیاء کے انبار میں اچانک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے مذکورہ حادثہ پیش آیا۔ ایسار نگر پولیس نے سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی، جبکہ آتش فروغ عملے نے مقام حادثے پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ పది గంటల సమయంలో మనకు ఫైర్ కాల్ వచ్చింది। ఎర్రగడ్డ సమ్మాన్ హోటల్ పక్క గల్లీ, ఇక్కడ G+2 బిల్డింగ్, చిన్న బిల్డింగే, మొత్తం స్క్రాప్ ఐటమ్ ఉంది। లైఫ్ లాస్ ఏం లేదు, మనుషులు కూడా ఇవ్వలేదు ఇందులో, ఓన్లీ స్క్రాప్ ఐటమే ఉంది, అదే మన గాలిని మొత్తము। సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంట్రోల్ ఫైర్ ఉంటాం। మన ఆల్మోస్ట్ 3-4 వెహికల్ వర్క్ చేశాయి, అంతే। ఫైర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ కంట్రోల్, ఎవరు లేరు అసలు। ఓన్లీ ఆ బిల్డింగ్లో ఓన్లీ స్క్రాప్ ఐటమ్ మాత్రం పెట్టుకున్నారు, పాత సామానే ఉన్నది, మనుషులు ఎవ్వరూ లేరు। మేబీ నిన్న రాత్రి పటాకులు గిట్ట పడి ఖాళీ మెల్లగా అయింది అనుకుంటున్నాము। షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే
పాత బిల్డింగే అది, దానికి పర్మిషన్ అయితే ఉండకుండొచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే. ఇంకా డీటెయిల్స్ అవి చూడాలి. अमीर इमारत मिलत इस्लामिया और रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा ने हुसामिया मंजिल पंजे शाह में मुनक़िदा याद फ़ाजिल व याद आखिल तक़ारीब के इख्तितामी इजलास के मौके पर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी हुसामी को अपनी खिलाफत से नवाजा। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी बानी मदरसा रियाज़ुल उलूम के फ़र्जंद हैं। इस मौके पर मौलाना जाफ़र पाशा ने अपने खिताब में कहा कि हाफिज़ मोहम्मद रियाज़ अहमद उनके शागिर्द व रशीद हैं और मस्जिद में खिताबत की जिम्मेदारी के अलावा दीनी, मिली व समाजी खिदमात में भी वो मसरूफ़ हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आरटीसी मुलाजमीन की माबकी तनख्वाहें फौरी जारी की जाए, वज़ीर आला KCR ने आला सतही इजलास के बाद महकमे फाइनेंस के ओहदेदारों को दी हिदायत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उमर कॉलोनी बाबा नगर में नजम उन्नीसा एजुकेशनल कैंप्स का रखा संगे बुनियाद, बारिश मुतासरीन में इमदाद की तकसीम। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकरीब से किया खिताब। GHMC इंतखाबात में बीजेपी जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगी, हिकमत अमली इजलास के बाद बीजेपी कायदीन ने किया दावा। दीपावली त्यौहार के दौरान शहर के कई मुकामात पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी के हादसात, मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। मजलिस की रियासत बिहार के ज़मीनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर जश्न जारी, जहानुमा डिवीजन में जश्न और जवाहर नगर में दुआया इज्तिमा का एहतमाम। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।